محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ ولی اور کتے سے زنا کا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اس بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی، تہجد گزار، عبادت پسند، پردہ دار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی۔ بدقسمتی تھے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا سایہ، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلی ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہاں بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، جینا حرام بھی کر سکتے ہیں، بری نظر سے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بھی بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر شوہر کے وفات کے بعد اس نے کسی نہ کسی کام کے لیے اس کو جانا پڑتا تھا۔ سارا دن وہ روزے سے رہتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کرتی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا اور وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی، راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کو گھر لے آئی، اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت ہی صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا بھی اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک بہت بڑی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اس سے اپنا ہر دکھ درد شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی مردوں کی نظر جھک جاتی مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا، رات کو لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا، پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاری کرتا اس کا شوق بن چکا تھا اور عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے ہاں اپنے ملازم کو بھیجا اور کہا اس عورت کو کہو کہ مجھ سے آ کر ملے۔ عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو میں غیر مردوں سے ملا نہیں کرتی۔ اس ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ اس کے دروازے پر گیا، دروازہ بجایا۔ عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟
वो कहने लगा, इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। उस औरत ने कहा, अमीर हो, गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। उसके लिए तुम जितनी चाहोगी मैं तुम्हें दौलत दे दूंगा। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह ज़िनाहकारी की दावत ना दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो जहेज में बहुत ज़्यादा मालो दौलत पैसा लेकर आई हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दूंगा मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के खौफ से डर और यहाँ से चला जा। ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता मगर वो औरत उसका चेहरा देखना पसंद न करती, वापस भेज देती। और एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसको उठा कर ले आए। और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुँचे तो न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनको उठा कर बाहर फेंक रही थी। वो घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो रहे थे और आकर ये पूरी बात अपने मालिक को बताई। उन्होंने कहा, वो कोई आम औरत नहीं है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, वो बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके घर के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली। उसने वहाँ की कुछ अमीर लोगों को अपने साथ में लाया और कहने लगा, इस बस्ती में बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील औरत है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की मगर वो मेरे हाथ में नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसको किसी भी तरह से हासिल कर सकते हो, फिर जब वो हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी कि उसके साथ बदकारी कर लेंगे। सब बारी बारी उसके घर के पास गए मगर वो औरत उन शैतानों को दरवाजे से वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वो औरत किसी के हाथ में भी आने वाली नहीं है। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा, ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके, मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई। अब इसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, इसको बहुत ज़्यादा नेक समझती है। हम इसको इस बस्ती में तवाइफ ज़ाहिर करेंगे, सब लोग उस पर लान तान भेजेंगे। वो सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते, अजीब अजीब आवाज़ें निकालते, ताने देते, उसके घर के सामने कोई चीज़ रख देते, कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वो ये सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर कुत्ते की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गए। वो रईस आदमी उस कुत्ते की आवाज़ सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि ये औरत क्यों हमारी बातों में नहीं आ रही? क्योंकि औरत इस कुत्ते के साथ ज़िना करती है। अस्तगफिरुल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ये बात इन लोगों ने पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। एक ऐसा इल्ज़ाम था कि इस बस्ती की हर औरत, हर मर्द तौबा तौबा करने लगा। वहाँ के लोग, औरतें कहने लगी कि इसलिए हम कहते थे कि ये औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये एक कुत्ते के साथ बदकारी करती है। अब वो औरत अपनी नेक नामी, इबादत गुजारी और अल्लाह ताला के जिक्र अज़कार की वजह से उस बस्ती में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग उसको पत्थर मारने लगे, लान तान करने लगे। सजदे में गिर कर वो अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। उसका रोना देखकर बेज़ुबान कुत्ता भी रोना शुरू हो गया। उस औरत के दर्द से बेज़ुबान जानवर भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और वो कमज़ोर औरत कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अल्लाह के हजूर सजदे में गिरी रही और अल्लाह ताला से कहने लगी कि या अल्लाह
मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। तू मुझे माफ़ कर दे, मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझ पर कोई इतना घटिया इल्ज़ाम लगाए। या अल्लाह, तू मेरे हक़ में इंसाफ कर, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इससे ज़्यादा इंसान की क्या तज़लील होगी कि वो एक बेज़ुबान कुत्ते के साथ ज़िनाहकारी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। वो अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फैसला करते तमाम लोग बड़ी ही इज्जत एहतराम से मान लेते। अब उस रईस ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवाइफ औरत को यहाँ से निकलवाना होगा और उसके लिए हमें उस अल्लाह वाले काजी के पास जाना होगा और वो हमारे हक में जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा और हम उम्मीद रखती हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वो पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले काजी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फलां औरत बहुत ही बदकार है, यहाँ तक कि उसने अपनी बदकारियों में एक कुत्ते को भी छोड़ा नहीं और हम चाहते हैं कि उसको संसार कर दिया जाए। उस औरत को लहू लहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए। वो है ही इन पत्थरों के काबिल, आप जल्दी से इस बस्ती से उसको निकाल दें। काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी और तहम्मुल से सुनी। उसके बाद उन्होंने अपना एक शागिर्द को हुक्म दिया, जब उस औरत को बुला कर लाओ। अल्लाह वाले का शागिर्द उस औरत को बुला कर लाने गया और सीधा उस औरत के घर गया। जाकर कहने लगा, आपको वक़्त के काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। वो औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उनको उस औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया जिसके बारे में कोई बस्ती वाला भी नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वो औरत आ चुकी है, वो अंदर गए और जाकर उस औरत को कहने लगे, ऐ औरत, क्या तू कुत्ते के साथ ज़िनाहकारी करती है? ये सुनकर वो औरत रोना लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे यकीनन वो सही करेंगे। वो अल्लाह वाले बाहर आए और वो रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तहमत लगाई थी उनको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस रईस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्ज़ाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी को पूछने लगे, बताओ, जिस कुत्ते से उस औरत ने ज़िना किया था वो कुत्ता किस रंग का था? वो आदमी एकदम डर गया क्योंकि उसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। वो कहने लगा, कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी बड़ा सोच समझ कर जवाब दिया और कहने लगा, कुत्ता सुर्ख रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने भी यही जवाब दिया कि कुत्ता सफ़ेद कलर का था। चौथे को बुलाया, उसने भी यही सवाल पूछा गया और उसने इसका जवाब दिया कि उसका रंग खाकी था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत उस कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये यहाँ क्या कर रही है। जब सबकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ी, उस कुत्ते का रंग ना काला था, ना लाल था, ना सफ़ेद था, ना खाकी था, बल्कि वो तमाम रंगों से बना हुआ था। अल्लाह वाले को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्ज़ाम ना लगाते, उस पर बहतान ना बांधते, तो शायद जो आज सज़ा तुम लोगों को मिलने वाली है वो तुम्हें ना मिलती। वो आदमी कहने लगा, हम सच बोल रहे हैं, एक तवाइफ है, ज़नाहकार है, बदकारी करती है, आप इसको संसार कर दें। वो अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अच्छा, तुम सब ने अपनी सच्ची गवाही दे दी इस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाही बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, गवाही और कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, गवाही जिसके साथ ये औरत ज़िना करती थी। वहाँ वो रईस आदमी ये सुनकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, आपकी बहुत ज़्यादा हम इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एक कुत्ता इस औरत की कैसे गवाही दे सकता है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही हो, फिर ये कुत्ता तो क्या, चरिंद परिंद, पहाड़, ज़मीन
हर चीज़ गवाही दे सकती है, क्योंकि अल्लाह जब ज़बान देने पे आता है, जानवर क्या चीज़ है, बेजान चीज़ पे भी ज़बान डाल देता है। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह के हजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा कि तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहता है। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, उस पर गुनाहगारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही ना दी, एक नेक औरत को संसार कर दिया जाएगा। इसलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि ये औरत एक नेक औरत है, ये पाक साफ औरत है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती है। जिन लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाए हैं, संसार उन लोगों को करना चाहिए। वही अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया, अगर किसी पाक नेक पाकीज़ा औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, संसार किया जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों को संसार कर दिया जाए। बस्ती का हर फर्द इनको पत्थर मारे और फिर उल्टा लगा कर इनको कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने ये फैसला कबूल किया। अल्लाह वाले के हाँ में हाँ मिलाई। वो औरत ये फैसला सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसकी मदद की। उस औरत को देखकर कुत्ता भी रोने लगा। अब वो चारों आदमी रोने लगे कि हमें माफ़ कर दें, हमने बहुत ज्यादती की है उस औरत पर, हम आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। उसने अल्लाह वाले ने कहा कि इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल होता है, इसलिए तुम लोगों को संसार कर दिया जाए। अब इन चारों को संसार कर दिया गया और फिर उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया गया। मुहतरम नाजरीन, किसी पर इल्ज़ाम या तहमत लगाना अल्लाह के यहाँ नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी के बारे में ऐसी बात कही, ऐसा इल्ज़ाम झूठा लगाया या झूठी बात कही जो हकीकत में नहीं है, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को क़यामत के दिन दोज़ख की पीप में डाल देगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमा।